Hello students, welcome to the lecture number 10 of surface chemistry. So we were discussing the properties of colloidal. We left with one problem, that is one property that is called seventh property, that is coagulation. Coagulation or flocculation. एज यू नो, जो हमारे लियोफोबिक कोलाइडल्स होते हैं, लियोफोबिक कोलाइडल्स, दे आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देयर कोलाइडल पार्टिकल्स. स्टेबल ड्यू टू चार्ज ऑन कोलाइडल particles. Now if somehow this charge on colloidal particle is removed, अगर ये चार्ज आपके जो हैं ये किसी तरीके से रिमूव कर दें, हम न्यूट्रलाइज कर दें, then what will happen? These particles were earlier not coming close to each other because of the repulsive forces between the similar charges on the particles. But as soon as their charge is removed, जैसे ही उनका चार्ज खत्म होगा, these particles will come close. They will grow up in the size, that is they will aggregate and will ultimately settle down, that is they will get precipitated. This phenomena of settling down of colloidal particles is called coagulation or flocculation. इसी को हम बोलते हैं coagulation or flocculation. So you can define the coagulation as the process of settling down of colloidal particle, that is your coagulation or flocculation. Coagulation of a colloidal can be carried out in a number of different ways. आप कई तरीके से coagulation कर सकते हैं. जैसे you can carry out the coagulation by electrophoresis. मैंने आपको जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी तब भी ये बताया था कि जब आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, देन योर कोलाइडल पार्टिकल्स दे मूव टुवार्ड्स वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, दे अप्रोचेज द इलेक्ट्रोड. जैसे मान लीजिए आपका पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल है, सो नेचुरली इट विल गो टू द योर एनोड एंड एट एनोड दे विल लूज अप दियर चार्ज, अपना चार्ज लूज कर देंगे एंड दे विल गेट सेटल डाउन, दे विल गेट प्रेसिपिटेटेड और यू कैन से दे गेट कोगुलेटेड. So the first way is electrophoresis. The second way of coagulating colloidal is the mutual coagulation. Mutual coagulation. What is there in mutual coagulation? मान लीजिए हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है. As you know that it is positively charged due to adsorption of ferric ion on the ferric hydroxide colloidal. And you are having arsenic sulfide colloidal As2S3. It is negatively charged due to adsorption of sulfide ions. These two are oppositely charged colloidal. If these two colloidals they are mixed together, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा मिक्स कर दें, then they will either coagulate each other completely, या तो पूरी तरह से एक दूसरे को coagulate कर देंगे by neutralizing the charge of each other, or they will coagulate it partially. ये ध्यान रखना है that these are mixed in a almost equal proportion. So this is the second way of coagulating. Third one is boiling. अगर आप किसी colloidal solution को boil करें, then what happens is your adsorbed layer on the colloidal particle that is disturbed. Why it is disturbed? Because when the boiling will carry out, your thermal energies of the particles will increase, the collision, number of collisions of dispersion medium particle on the colloidal particles will increase, and that will lead to removal of charge, and ultimately your colloidal particles will settle down or they will get coagulated, और ये आपके क्या हो जाएंगे, coagulate हो जाएंगे. The fourth one is by adding electrolyte. जो हमारे पास चौथा तरीका है इसको कोगुलेट करने का, दैट इज एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है दैट कंट्रीब्यूट 2 आयंस इनटू द सॉल्यूशंस। तो जब हम सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे किसी कोलाइडल के अंदर, तो जो आपका अपोजिटली चार्ज आयन होगा दैट विल न्यूट्रलाइज द इलेक्ट्रो दैट इज कोलाइडल पार्टिकल्स, उनको न्यूट्रलाइज कर देगा बाय कंबाइनिंग विद देम, एंड एज द न्यूट्रलाइजेशन विल टेक प्लेस पार्टिकल्स विल कम क्लोजर एंड दे विल ग्रो इनटू साइज एंड विल सेटल डाउन, दैट इज कोगुलेशन विल टेक प्लेस। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग और फ्लोकुएटिंग पावर कि कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना इफेक्टिव है टू कैरी आउट द कोगुलेशन ऑफ ए गिवन कोलाइडल, ये देखा गया है कि जितने भी हमारे कोलाइडल्स हैं they are coagulated by oppositely charged ion, and greater the charge on the oppositely charged ion, more is the power of that electrolyte to coagulate। उतनी ही ज़्यादा उस इलेक्ट्रोलाइट की पावर है कोगुलेट करने की, वो उतना ही बढ़िया कोगुलेटिंग एजेंट है। जो चीज़ हम इलेक्ट्रोलाइट बाहर से डालते हैं टू कोगुलेट ए सब्सटेंस, उसको कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। सो दैट इलेक्ट्रोलाइट इज दैट मच मोर इफेक्टिव, और इसको बोलते हैं हम हार्डी शुल्स लॉ और रूल। लॉ की बजाय रूल लिख लीजिए आप। हार्डी शुल्स रूल ये क्या कहता है? ये कहता है ग्रेटर द चार्ज ऑन द कोगुलेटिंग आयन दैट इज अपोजिटली चार्ज आयन, मोर इज द पावर ऑफ कोगुलेटिंग। जैसे अगर हम नेगेटिव चार्ज कोलाइडल की बात करें, फॉर ए negatively charged colloidal, for a negatively charged colloidal, जो coagulating power है that will be for aluminium ion it will be greater than barium ion, it will be greater than your sodium ion, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल है तो उसको कोगुलेट करेगा पॉजिटिव चार्ज आयन, तो पॉजिटिव चार्ज पे जितना ज़्यादा आयन होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल है, फॉर पॉजिटिव कोलाइडल, इसके अंदर अगर हम देखें तो आपका फेरोसाइनाइड आयन इज मोर पावरफुल देन फॉस्फेट आयन, इट इज मोर पावरफुल टू कोगुलेट देन सल्फेट आयन, इट्स पावर इज मोर देन सल्फेट एंड इट इज मोर पावरफुल देन क्लोराइड आयन। तो दिस इज योर हार्डी-शुल्स रूल। इसके बाद जो एक चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं दैट इज कोगुलेटिंग वैल्यू, दैट इज योर कोगुलेटिंग वैल्यू या फ्लोकुएटिंग वैल्यू, ज़्यादातर फ्लोकुएटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो नेक्स्ट वन इज कोगुलेटिंग और फ्लोकुएटिंग वैल्यू। व्हाट इज दिस? इसको हम डिफाइन करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ ए ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या कोगुलेटिंग रिएजेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच मस्ट बी एडिड टू cause complete coagulation, which must be added per liter to cause complete coagulation of a colloidal in 2 hours। आप कितने मिलीमोल्स डालें किसी इलेक्ट्रोलाइट के, सो दैट व्हेन दे आर दिस इलेक्ट्रोलाइट दीज मिलीमोल्स आर एडेड टू दैट कोलाइडल रैपिडली, इट कैन कॉज coagulation, complete coagulation
विद इन 2 आवर्स ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। इसमें यह ध्यान रखना है कि मिनिमम द नंबर ऑफ मोल्स, जिसके जितने नंबर ऑफ मोल्स कम लगेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट उतना ही पावरफुल होगा। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कोगुलेटिंग पावर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू। ये आपने ध्यान रखना है, जिसकी कोगुलेटिंग वैल्यू जितनी कम होगी वो इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा टू कॉज द कोगुलेशन। जो लियोफिलिक कोलाइडल्स हैं, लियोफोबिक में तो आपका क्योंकि स्टेबिलिटी कम होती है, दे कैन बी वेरी इजीली कोगुलेटेड। इन केस ऑफ लियोफिलिक कोलाइडल हम कैसे करते हैं कोगुलेशन, क्योंकि लियोफिलिक कोलाइडल की जो स्टेबिलिटी होती है दैट इज ड्यू टू द सॉल्वेशन, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की एक लेयर बन जाती है उसके चारों तरफ। सो लियोफिलिक कोलाइडल्स आर जनरली कोगुलेटेड बाय एडिंग सूटेबल सॉल्वेंट, जैसे उसमें आप अल्कोहल डाल दीजिए, एसीटोन डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज होती है दैट गेट डिहाइड्रेटेड, उसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी एंड द पार्टिकल्स विल कम क्लोजर। एंड आफ्टर दैट adding that solvent, if you add even small amount of electrolyte, your coagulation of liyophilic colloidal will take place. The next thing is, जो next method है that is persistent dialysis. Method of purification में बताया था मैंने, this is the next method for coagulation. कि हम डायलिसिस क्यों करते हैं? टू रिमूव द इलेक्ट्रोलाइटिक impurities प्रेजेंट इन एक्सेस। लेकिन अगर हम किसी कोलाइडल की इलेक्ट्रोलिसिस को प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, बहुत लंबे समय तक इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, तो इवन द लास्ट ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल रिमूव्ड, दैट विल बी रिमूव्ड, लास्ट ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल आल्सो बी रिमूव्ड, विच आर वेरी नेसेसरी। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द लियोफोबिक कोलाइडल। तो प्रोलॉन्ग डायलिसिस में वो सारा इलेक्ट्रोलाइट जब रिमूव हो जाएगा, पार्टिकल विल बिकम न्यूट्रल एंड दे विल कम क्लोज एंड अल्टीमेटली गेट कोगुलेटेड। सो दीज आर द वेरियस मेथड ऑफ कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ ए कोलाइडल। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है that is protective action and protective collide. Next thing is your protective action and protective collides. अभी हम शुरू से, जब से हमने लियोफोबिक कोलाइडल किया है डिस्कस, तब से हम बार बार कहते आ रहे हैं कि लियोफोबिक कोलाइडल्स आर क्वाइट लेस स्टेबल, बहुत कम स्टेबल होते हैं एंड दे कैन बी वेरी इजीली कोगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बट व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इफ टू ए लियोफोबिक कोलाइड वी एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लियोफिलिक कोलाइड, किसी लियोफिलिक कोलाइड का स्मॉल अमाउंट अगर हम डाल दें, देन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इज कि आपके जो ये लियोफोबिक कोलाइड्स थे विच वर अर्लियर वेरी अनस्टेबल एंड वेल कोगुलेटेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कोगुलेट, उनको कोगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। मीनिंग देयर बाई इज जस्ट बाय सिंपल एडिशन ऑफ दिस लियोफिलिक कोलाइड द स्टेबिलिटी ऑफ लियोफोबिक कोलाइड इंक्रीजेस। तो जो हमने ये लियोफिलिक कोलाइड डाला इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड, और जो ये स्टेबिलिटी बढ़ी किसी लियोफोबिक कोलाइड की, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लियोफिलिक कोलाइड। होता क्या है इसके अंदर कि हमारा ये जो लियोफोबिक कोलाइड है, इस लियोफोबिक कोलाइड के ऊपर चारों तरफ यहाँ पे लियोफिलिक कोलाइड की एक लेयर बन जाती है। तो ये जो लियोफिलिक कोलाइड है, लियोफोबिक कोलाइड है, दैट स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए लियोफिलिक कोलाइड एंड लियोफिलिक कोलाइड्स आर स्टेबल एज यू नो। Now, how we can measure कि लियोफिलिक जो कोलाइड है, what is its power, protecting power, ये कितना पावरफुल और कितनी अच्छी तरह से किसी कोलाइडल को प्रोटेक्ट करता है किसी लियोफिलिक कोलाइड के लिए। उसको हम अगर कंपैरिजन करना चाहें डिफरेंट लियोफिलिक कोलाइड को, लियोफिलिक कोलाइड के अंदर जैसे हमारा जेलेटिन है, गम एराबिक है, आपका एग एल्ब्यूमिन है, दीज आर सम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। अब कोई अब जानना चाहे कि इनमें से विच वन इज ए बेटर,
विच वन इज ए बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड, देन हाउ वी विल नो। तो इसके लिए एक मैंने पहले भी बताया था, एक साइंटिस्ट हुए हैं जेगमॉन्डी, उन्होंने एक नंबर डिफाइन किया जिसको हम कहते हैं गोल्ड नंबर, विच इज़ ए मेजर ऑफ प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ ए लियोफिलिक कोलाइड, कि आपका लियोफिलिक कोलाइड कितना इफेक्टिव है उसका मेजर है ये, उसको हम कहते हैं गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? गोल्ड नंबर को डिफाइन करते हैं हम, गोल्ड नंबर को आप समझ लीजिए कि गोल्ड नंबर क्या होता है। आपको गोल्ड नंबर अगर किसी चीज़ का मेजर करना है, किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड का, तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड रेड जो है गोल्ड सोल लेंगे। गोल्ड की सोल के बारे में मैंने बताया था, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स। तो इनिशियली जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं तो गोल्ड सोल का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो हमने वो स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल लेनी है, ठीक है, और उसका क्या लेना है, 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल। और अब इसके अंदर प्रोटेक्टिव कोलाइड का अमाउंट डालना है, अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम। और उसके बाद इसके अंदर हमने रैपिडली 1 ml 10% NaCl का सॉल्यूशन डालना है रैपिडली। और अगर ऐसा करने से आपकी इस स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल का कलर चेंज नहीं होता, कलर चेंज नहीं होता, या यूं कह लीजिए कोगुलेशन नहीं होती। कलर चेंज मैंने आपको बताया था कि रेड सोल का जब पार्टिकल साइज छोटा होता है तो रेड, जैसे जैसे पार्टिकल साइज ग्रो करता है, पर्पल देन ब्लू देन टू गोल्डन। तो या तो कोगुलेशन देख लीजिए आप, या कलर चेंज भी नहीं होना चाहिए। सो अगर ऐसा नहीं होता देन वट एवर अमाउंट इन मिलीग्राम, ये जो मिलीग्राम में हमने अमाउंट डाला हुआ है प्रोटेक्टिव कोलाइड का, वो मिलीग्राम में जो अमाउंट है प्रोटेक्टिव कोलाइड का, वही उसका गोल्ड नंबर कहलाएगा। So how will you define the gold number? Gold number will be defined as the amount of a protective collide in milligrams which must be added to 10 milliliter of a standard red gold sol so as to prevent its coagulation by addition of 1 ml of 10% NaCl solution to it rapidly. इसका मतलब क्या हुआ? Smaller the value of gold number, smaller value of gold number, better is the protective action। वो कोलाइडल लियोफिलिक कोलाइडल उतना ही बढ़िया क्या होगा, बेटर इज प्रोटेक्टिव कोलाइड, उतना ही बढ़िया प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा। तो प्रोटेक्टिव पावर इज सिंपली द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गोल्ड नंबर। ये गोल्ड नंबर जनरली क्या होता है, इट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। तो समटाइम्स टू मेजर द और टू कंपेयर द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स वी आल्सो कंपेयर द रेसिप्रोकल ऑफ द गोल्ड नंबर। तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस, बिकॉज दिस गोल्ड नंबर इज स्मॉल, तो रेसिप्रोकल ऑफ दैट विल बी लार्ज, सो दैट विल बिकम ए बिट ईजियर टू कंपेयर। तो समटाइम्स वी आल्सो यूज द रेसिप्रोकल ऑफ द गोल्ड नंबर टू कंपेयर द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ ए कोलाइड। प्रोटेक्टिव एक्शन का कहाँ कहाँ फ़ायदा है, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं? आइसक्रीम में हम इसी का यूज़ करते हैं। आइसक्रीम के अंदर हम जो है जेलेटिन डालते हैं टू मेक इट स्टेबल, और बहुत सी जगह यूज़ होता है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलाइड्स। सो दिस इज अबाउट द प्रोटेक्टिव एक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इमल्शंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इमल्शंस। इमल्शंस क्या होते हैं? दिस इज ए लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड टाइप कोलाइडल। ये हमने शुरू में जब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल की थी तब भी बताया था कि इमल्शंस क्या होती हैं, दे आर लिक्विड इन लिक्विड टाइप कोलाइडल। इसमें क्या होता है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वन ऑफ द लिक्विड गेट डिस्पर्स्ड इन द अनदर लिक्विड, किसी दूसरे लिक्विड के अंदर स्मॉल ड्रॉपलेट्स वो क्या हो जाती है, लिक्विड में हो जाती है। और ऐसा कब होता है?
जब हम किन्हीं दो इमिसिबल लिक्विड्स को, जो आपस में घुलते नहीं हैं, ऐसे दो लिक्विड्स को, या जो बहुत कम घुलते हैं एक दूसरे के बीच में, ऐसे दो लिक्विड्स को मिक्स करके व्हेन वी शेक इट, जब हम इनको शेक करेंगे विग्रसली, देन वी गेट ए कोर्स डिस्पर्शन ऑफ वन ऑफ द लिक्विड इनटू द अनदर लिक्विड। तो इसको हम बोलते हैं इमल्शन। जो हमारी इमल्शंस होती हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड ऑयल इन वाटर टाइप, ऑयल इन वाटर, इसको लिखते हैं O/W, एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, इसको लिखते हैं W/O। ऑयल इन वाटर इमल्शंस क्या होती हैं? ऑयल इन वाटर इमल्शंस वो इमल्शन होती है जिसमें वाटर एक्ट एज ए डिस्पर्शन मीडियम, वेयर एज योर लिक्विड ऑयल दैट इज एक्टिंग एज ए डिस्पर्स्ड फेस, उसको हम बोलते हैं ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है मिल्क। मिल्क में क्या होता है? आपका लिक्विड फैट दैट इज डिस्पर्स्ड इनटू द वाटर। जनरली दिस टाइप ऑफ इमल्शंस दे आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होती। सो टू मेक देम स्टेबल ए थर्ड कंपोनेंट इज आल्सो एडिड, एक तीसरी चीज और डाली जाती है, दैट इज कॉल्ड इमल्सीफायर। उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सीफायर। What is the function of this emulsifier? This emulsifier binds together the two phases, that is the liquid and oil phase of emulsion, and make it stable. जैसे अगर आप इसको देखना चाहें तो अगर आप पानी के अंदर थोड़े से पानी में 2-3 ड्रॉप सरसों के तेल की डाल के हिलाएं घर पे, यू विल गेट ए वाइटिश कोलाइडल, एक सफ़ेद रंग का कोलाइडल बन जाएगा। उसको अगर आप थोड़ी सी देर रख दें and then you note down the time, then how many much time the two phases, that is the oil and liquid, get separated, you note it down. Now what you do is add a pinch of your surf or any detergent and then shake it again you will get colloidal, again you observe the time of separation of the two phases, that is the liquid and oil, you will find now the emulsion is more stable. So this emulsifier is that component which increases the stability of a emulsion. In case of milk, there is a protein casein which is a emulsifier in case of milk. In case of water and in oil type, oil is dispersion medium and water is your dispersed phase. इसका एग्जाम्पल आपका जो है वो आपकी वैनिशिंग क्रीम है, जो आपकी वैनिशिंग क्रीम तो वाटर है, ऑयल इन वाटर टाइप है। इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ बटर, आपका जो मक्खन होता है वो इसी का एग्जांपल है, क्रीम जो है वो इसी का एग्जांपल है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इमल्सीफायर डालना है। अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो कि किस टाइप की इमल्शन आपके पास, तो इसके कई मेथड हैं। एक तो हमारे पास ऑयल सोल्यूबल डाई आती है, आपको इमल्शन देखनी है कि वो ऑयल इन वाटर टाइप है या वाटर इन ऑयल टाइप है, तो एक थोड़ा सा अमाउंट उस डाई का डालिए आप। अगर पूरे की पूरी इमल्शन का कलर उस डाई जैसा हो जाता है, इसका मतलब ऑयल इज प्रेजेंट इन एक्सेस, ऑयल डिस्पर्शन मीडियम है, सो योर इमल्शन इज वाटर इन ऑयल टाइप। अगर ऐसा नहीं होता देन इट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप। दूसरा क्या है, आप इमल्शन को ले लीजिए, माइक्रोस्कोप से देखिए उस इमल्शन को, और ऊपर से एक ड्रॉप पर से एक ड्रॉप वाटर की डालिए उसके अंदर। अगर ऑयल एक्सेस में होगा यू विल सी दैट वाटर ड्रॉपलेट ट्रैवलिंग टू ए डिस्टेंस, वेयर एज इफ इट इज़ वाटर ऑयल इन वाटर टाइप, तो वाटर एक्सेस में तो जैसे ही ड्रॉप डालेंगे वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाएगी ये, यू विल नॉट फाइंड दैट ट्रैवल। द थर्ड वे टू आइडेंटिफाई इज यू एड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट मेजर द कंडक्टेंस ऑफ दैट इमल्शन, इमल्शन की कंडक्टेंस मेजर कीजिए, एंड देन एड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इफ देर इज अ वेरी लार्ज चेंज इन द कंडक्टेंस दैट इंडिकेट दैट वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस, बिकॉज योर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इन केस ऑफ वाटर, वाटर सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट होते हैं। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग what type of emulsions you are having. Now the next is colloidal around us. हमारे आसपास डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कोलाइडल्स जो हैं वो हमारे आसपास बिखरे हुए हैं, या कोलाइडल्स का किसी तरह का यूज़ है। जैसे आपका जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट योर लाइट गेट स्कैटर्ड
वाई इट इज़ गेट स्कैटर्ड? बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल इन द एयर, ठीक है। देर आर क्लाउड्स आर आल्सो यूर कोलाइडल्स। सो ब्लू कलर ऑफ स्काई है आपके पास। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे, जैसे सर्दियों में आपकी फोग है, मिस्ट है, धुंध कोहरा वगैरह जो आता है, दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ कोलाइडल। हमारे पास बहुत सारे फूड आर्टिकल्स हैं, जैसे हमारे पास बटर है, ठीक है, क्रीम है, ठीक है, मिल्क है, ये सब के सब क्या हैं? दे ऑल आर कोलाइडल। सो इफ़ यू लुक अराउंड यूर सेल्फ, अगर आप अपने आसपास देखेंगे, देन यू विल फाइंड दैट देयर आर ए नंबर ऑफ कोलाइडल्स प्रेजेंट। कुछ आर्टिकल्स जो है कुछ और दिए हुए हैं जो एनसीईआरटी में, जैसे ब्लड है हमारा, दैट इज़ आल्सो कोलाइडल। सो फर्टाइल सोल एट दैट इज आल्सो कोलाइडल इन नेचर, जिसमें ह्यूमस जो होता है दैट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा जो है दैट इज़ एट द, आपको पता है कि डेल्टा कहाँ बनता है? डेल्टा बनता है जहाँ पे आपकी कोई भी रिवर जाके समुद्र में मिलती है। रीज़न बीइंग कि आपकी जो रिवर है दैट कैरीज द डस्ट, दैट इज़ योर सैंड और यू कैन से क्ले इन द इट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल। जैसे ही वहाँ पे आपके समुद्र के पानी के साथ मिलती है तो व्हाट हैपन्स इज कोगुलेशन ऑफ दैट सैंड पार्ट सेटल डाउन, सारी की सारी सैंड सेटल हो जाती है और एकदम से आपका वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन हो जाती है। तो एक आपके जो हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल्स के अंदर हमारे बहुत सारे क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप है, टैनिंग है। एनिमल जो आपकी हाइड्स होती हैं वो इतनी चमकती नहीं है जितने आपके जूते चमकते हैं, उनकी पहले टैनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जो हाइड है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल, इट इज़ सॉक्ड इन टैनिन विच कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल। म्यूचुअल कोगुलेशन होगी उसके अंदर, दैट विल कॉज दिस। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक है। हमारी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जहाँ पे भट्टियाँ जलती हैं वहाँ पे डस्ट स्मोक के साथ छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं जिनको बोलते हैं SPM। तो वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, हेल्थ हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं उनके। तो एक चीज़ होती है कोर्टल प्रेसिपिटेटर। कोर्टल प्रेसिपिटेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट लगा देते हैं चिमनी के अंदर, आपके कोलाइडल चार्ज पार्टिकल है तो जो आपके डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं SPM, दे विल गेट न्यूट्रलाइज एंड विल सेटल डाउन, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस और भी हैं कोलाइडल की, यू कैन रीड दैम एंड रिमेंबर दैट it is not necessary that I spoke out all of those over here. You can check it out from the books also. So this is all about this chapter. हमारा ये चैप्टर इतना ही है and hope you might have read this, go through this lecture and have any problem then you can ask me. Thank you very much.